we talked about in detail what is the communication process, what is communication, what are the kinds of communication, and we're going to talk about the types of communication. So here we see we got two types of communication. One is internal and the other is external. So far as the internal communication is concerned, a communication within the organization is called communication. When you communicate with your colleagues, with your officers, with your subordinates, and with other members of the organization. So within the four walls of your organization or within the branches of your communication. So when you do that communication, when you share their information with other groups, that is known as internal communication. So a communication between the production, for example, a communication between the production officer and a production manager, a communication between sales officer and sales manager, or a communication between a student and teacher, a student and student, teacher with dean, or faculty with HOD, or something like that. So when we talk about different things with different members, but we do Excuse me, not ma'am. cross the chain of our organization, that is known as internal communication. Yes, please. Are the memorandums part of internal communication or the external communication? Memorandums are, if they might be both. If they are the memorandums of meeting, memos of meeting, so you can have certain meetings within the organization and outside the organizations. So there are Okay. certain things that we mix these two communications, these two types of communication. So Okay, one ma'am. is for internal audience and the other is for external audience. So you can have two types of memos. And so far as the MOU or memorandum of understanding is concerned, when we mutually connect with other organizations, so that is external. So far as the meeting memo is concerned, that is within the organization when you have meetings with the members of your own organization, so that will be internal. So Okay. you can switch from internal to external. Clear, Ji? Yeah, ma'am. Thank you so much. Right. So come to the next point now. This is slide number 25. So internal communication in an organization is the transmission of information within an organization. Transmission means sharing of information or ideas or other things. Within an organization, internal communication is the lifeline of a business. How it comes that it becomes a lifeline of business? It is a lifeline of business. Why? Because no organization can stand without better and effective communication. If you want to succeed in a business, you need to focus on your communication cell. Right जी? So अगर मेरे घर में आके कोई ब्रोशर फेंकता है, कोई लीफलेट, कोई इस तरह की चीज आती है, तो सबसे पहले बीइंग, मे भी दूसरे लोग शायद नोटिस ना करते हो, बट बीइंग द member or being a communication teacher, मेरा फोकस होता है, क्योंकि मैं चीजें पढ़ाती भी हूँ, कि इन्होंने लिखा क्या हुआ है इसके ऊपर, लैंग्वेज कौन सी यूज की हुई है, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, कलर स्कीम कौन सी यूज की हुई ब्रोशर को बनाने के लिए, लेआउट कैसा है इसका, डिजाइन कैसा है, एंड मैनी अदर थिंग्स. And then I analyze within my mind that this is a competent organization. ये आपकी जो क्रीम ऊपर या एयरलिफ्ट वगैरह है, इनके बारे में मुझे उसी ब्रोशर से पता चला था. और ब्रोशर हमारे घर के अंदर फेंक के गए, और मेरी बेटी मेरे पास आई, कहती है मामा हेज ब्रोशर. मैंने कहा ये सारे आमतौर पे हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. और उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बेहतर है. वाई? उनका पेपर अच्छा था, उनकी प्रिंटिंग अच्छी थी, उनका डिजाइन अच्छा था, दैट वाज इन रेड कलर. और उसको मैंने देखा, पढ़ा, देन आई वेंट थ्रू द ऐप स्टोर, गूगल ऐप स्टोर के अंदर मैंने देखा, यस इट वाज देयर. देन आई केम टू नो कि अच्छा ये लिफ्ट नामी कंपनी भी कोई इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है इन द मार्केट. सो अब ये उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी मोटी ये जो कंपनी नहीं है. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का हमें उनके वो जो एडवर्टीजमेंट के लिए मटेरियल और मटेरियल के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उससे हम देख लेते हैं. आप आमतौर पे अब जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अब आप देखें कि उनका जो मेन्यू होता है उसका स्टाइल डिफरेंट होता है. दैट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है जी, वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है. द बेटर इट इज़, द
more advanced they are. ठीक है जी, इन चीजों पे हम फोकस करते हैं कि कम्युनिकेशन इनफैक्ट जो है आपकी वर्बल और नॉन वर्बल, दैट कन्वेज अ लॉट मैनी थिंग्स. जब आपको मैंने बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अ पर्सन व्हेन अ पर्सन एंटर्स, अब उसके एंटर होने से पहले वो बहुत सारी चीजें आपको कम्युनिकेट कर चुका होता है, बहुत सारी चीजें वो आपको शेयर कर चुका होता है. हाउ? विद द हेल्प ऑफ हिज और हर नॉन कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका लिबास, उसका परफ्यूम, उसका स्टाइल एंड मैनी अदर थिंग्स. और वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसके बारे में हम उसकी पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव ले चुके हैं. और जब वो बात करता है या उसके बाद वो अपनी मैसेज कन्वे करता है, तो वो उसके बाद वाली चीजें होती हैं, वो उसकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है. लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम पहले ही काफी चीजें असेस कर चुके थे. तो दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑन नाउ. इंटरनल कम्युनिकेशन में लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस है कि इसके बगैर कोई बिजनेस आपका स्टैंड नहीं कर सकता. जैसे मैंने आपको एयरलिफ्ट की एक एग्जांपल दी थी अपनी लाइफ में, or you might have observed the same in your own lives. So it occurs between an employer and an employee. ठीक है जी, आपका जो कंपनी ऑनर है वो और कंपनी के लिए जो काम करने वाला है वो. इंटरनल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है जी, जब हम एक्सटर्नल में जाएंगे तो वो आ जाएगा बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है जी, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ गए, वेंडर के साथ आ गए एंड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, look at that. This is external communication. External communication is the transmission of information between a business and other person or other unit in the company. ठीक है जी, बिजनेस में दूसरे लोगों के साथ. If you're dealing with the business of education, so you need to know what is happening in other institutions as well. तो दूसरे institutions के अंदर क्या हो रहा है आपको ये जानना होगा. ठीक है जी, आपके जैसे डिफरेंट लोग हैं ताकि आप बेहतर फीचर्स दे सकें, आप बेहतर क्वालिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. तो यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज of the same units around you if you are dealing in one business. ठीक है जी, तो इसमें वो दूसरी चीजों को यूनिट इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज ऑफरिंग. इफ हमारी यूनिवर्सिटी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिट क्या ऑफर कर रहा है. ठीक है जी, कॉम्पिटिट यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है, यूसीपी क्या कर रहा है, यूएमटी क्या कर रहा है, एंड व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. अब इसमें हम देखते हैं कि हमें मार्केट का भी पता होना चाहिए इन्वायरमेंट में, ताकि हम हमारे कंपैटिटर्स हैं ना, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कंपैटिटर्स हैं, तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं, हमारी उनके साथ मीटिंग भी हो सकती है, हमारी म्यूचुअल कोलैबोरेशंस भी होनी है. सो एग्जांपल है ऑफ दीज पीपल एंड यूनिट्स इंक्लूड कस्टमर्स, potential customers, suppliers, investors, shareholders and society at large. ये भी आपको मैंने बताया था कि वहाँ members और यहाँ पे society आ गई. ठीक है जी, वहाँ पीपल पर्सन थे, यहाँ हमारे होल सोसाइटी आ गई. सोसाइटी में आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जा सकते हैं, आपके नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इट माइट बी एट योर रीजनल लेवल. ठीक है जी, आपके अपने इलाकाई भी हो सकता है, आपके लोकल लेवल पे भी हो सकता है. सो दिस डिपेंड्स. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन दैट. ठीक है, ये आपका डायमीटर कितना है. अब लोकल कंपनी है तो विद इन लोकेलिटी यू विल हैव दिस इंफॉर्मेशन passed on to people. ठीक है जी, और this is how with the passage of time or according to the diameter or the size or the geography of your own organization you can expand your external communication. ठीक है जी, so external communication में हम इस तरह से देख लेते हैं चीज़ों को कि हमारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये देखें, ये इसकी एग्जाम्पल है. अब ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं. चैनल्स का भी आज आपको बताऊंगी कि व्हाट यू मीन बाय अ चैनल. राइट जी, यहाँ आप देखते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कह सकते हैं. और व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. अब एक तो ये हो गया कि आप सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं, आम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन से, उसकी टेरिटरी से बाहर निकल के. सो दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ये है कि व्हेन यू कम अक्रॉस टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन
you want to share information with other company, with other organization. दूसरी organization के साथ आप mutually चलना चाह रहे हैं, या आप अपनी pace को उनके according करना चाह रहे हैं, या you want to have some sort of information passed on to others. तो इस तरह से आपका एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी रहता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब चलते हैं, आपका बिजनेस भी, और स्पेशली बिजनेस फ्लो करने के लिए तो आपको डिफरेंट कंपनीज के साथ करना पड़ता है, बेशक वो आपके अपने उसकी हों, टाइप की हों या डिफरेंट टाइप की हों। ठीक है, आगे एक और पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें हम देखते हैं कि दिस इज हाउ हमारी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है और हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती है। So if you try to study minutely this picture, तो इसमें हम देखते हैं, so this is internal communication जिसमें हमारे जो actors हैं वो employees हैं located in the headquarters और subsidiaries जहाँ भी वो बैठे हुए हैं। उसमें हमारी जो meetings हैं, emails हैं, phone calls हैं, इंटरनल जर्नल हैं और इंटरनेट वगैरह, ये सारे का सारा। ठीक है जी। सो ये उसके बाद कम्युनिकेशन बाय प्रोड्यूस बाय अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज जो हैं ये गवर्नमेंट या सप्लायर्स या जो भी डिफरेंट एनजीओज हैं, तो ये सारे के सारे इनका इन्फ्लुएंस इन पे आ रहा है, और उसके साथ ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये दूसरे लोगों के साथ भी कर रहा है। तो यहाँ से भी हम इन्फ्लुएंस लेने हैं कि इनकी नीड्स को पहले हम देखते हैं, पहले हम इनको एनालाइज करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में वो लैग कर रहे हैं, और इफ़ दे हैव सर्टन सर्विसेज, तो कोई भी कंपनी सेटअप करने से पहले उस पर हम नया फीचर, यूनिकनेस, यूएसपी ज़रूर ढूंढते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि लोग आपकी कंपनी की तरफ क्यों आए जबकि ऑलरेडी कुछ और कंपनीज जो है वो वहाँ मौजूद हैं। राइट जी। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हमारा जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है इसका बॉर्डर आ जाता है, इसमें आपकी प्रिंटेड मटेरियल आ जाता है, जैसे आपसे मैंने कहा ब्रोशर्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, मैनी अदर थिंग्स जो आप प्रेस रिलीज करते हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, जो आप मार्केटिंग करते हैं। फिर वीडियो मटेरियल आ गया, वीडियो मटेरियल जो हम डिफरेंट टीवी एड्स वगैरह देखते हैं, फिर हम वो तस्वीरें देखते हैं जो बिल बोर्ड्स हैं उसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, और इससे भी हमें कुछ आइडिया होता है, जैसे जोंग वालों ने बहुत बड़े बड़े लगाता है बिल बोर्ड्स पे अपनी ऑफर्स, तो पैकेजेस का आमतौर पे हमें आते जाते हुए, आजकल तो हम कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आते जाते हुए नजर पड़ जाती है, और वहां से फिर वो हमें कन्वे होता है, ओके दे ऑफरिंग दिस थिंग नाउ। फिर ऑरल मटेरियल है, रेडियो के जरिए जो एफएम चैनल है उसके जरिए भी हम ये सारी करते हैं। इसमें सेल्स पिच आइडिया है वो भी आपके साथ में आगे जाके शेयर करूंगी, इंटरव्यूज वगैरह लोग डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। फिर कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, फिर इसमें कॉर्पोरेट वेबसाइट्स हैं, इसमें आपके प्रेस रिलीज आ जाते हैं, और इस तरह लोगों को हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना अलर्ट के बारे में आप इस देखते हैं कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, रेडियो पे, आपके इवन एसएमएस अलर्ट पे, तो डिफरेंट चीज़ें हैं कि हम वो अवेयरनेस जो है वो लोगों के साथ डिसिमिनेट कर रहे हैं, so that people might not suffer at a large scale and we might reduce the influence of this coronavirus around us. ठीक है जी। अब ये उसकी बेस्ट एग्जांपल हो गई कि everybody knows about the what is happening around us, कि why we are stuck within the four walls of our houses, तो उससे हमें ये सारी की सारी वो इन अलर्ट से पता चल रहा है। किससे हमें पता चल रहा है? वैसे कोरोना वायरस चाइना में सिंस दिसंबर था या जनवरी में थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया था, और मुझे याद है कि मैं एक दो दफ़ा वहाँ गई हूँ एम्पोरियम में, तो वहाँ चाइनीज़ को देख के थोड़ा सा मैं ना अलर्ट सी हो जाती थी, जैसे कि ये कोई एलियन या कोई इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन दिस इज़ हाउ वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ लार्ज स्केल पे फैलती चली गई, और अब हमें से भी बहुत सारे उसके विक्टिम या उसमें उसके सफरर्स हैं अमंग आर सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज बिट कंट्रोल। ठीक है जी। अब सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड मैनी अदर थिंग्स, इंस्टा वगैरह की पोस्ट आ गई। ठीक है जी। उसके बाद आपके जनाब आपकी वेबसाइट्स आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, बिजनेस टू बिजनेस आपकी वेबसाइट्स आ गई। तो अब ये सारे का सारा जो अगर आप ये डायमीटर देखते हैं, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, और इनका आपस में कनेक्शन होता है विद हमारा जो कम्युनिकेशन सेल होता है। वो कम्युनिकेशन सेल बाहर देखता है बाहर क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं, और वो हमारे इंटरनल जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताता है कि बाहर ये हो रहा है और हमें इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से दिस इज हाउ
हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब आपके पास जो कम्युनिकेशन फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि वो अब हम देखते हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं अपना इंटरनल कम्युनिकेशन को, क्योंकि हमारा यहाँ मेन जो है वो डोमेन वही है। लेकिन एक्सटर्नल में आपको शेयर होल्डर के साथ भी जाना पड़ेगा, लॉयर के साथ भी जाना पड़ेगा, आपको मीडिया के साथ भी जाना पड़ेगा, आपको डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट लेवल पे डील करना पड़ता है। ठीक है जी। अब कम्युनिकेशन फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है जी। फॉर्मल में आपकी जो ये प्लान कम्युनिकेशन होती है। प्लान कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास मेमो है, लेटर है, रिपोर्ट है, ईमेल है। ईमेल फैक्स करते हैं या हम वैसे फैक्स करते हैं, टेक्स्ट फैक्स करते हैं, दैट फॉलो कंपनीज चेन ऑफ कमांड। राइट जी। अब ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, और ये आपको